السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ حکومت نے طلبہ اور والدین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اب آدھار کارڈ بنوانے یا اس میں تبدیلی کروانے کے لیے آدھار مراکز کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ محکمہ تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے تمام اسکولوں میں خصوصی آدھار موبائل کیمپس لگائے جائیں گے تاکہ طلبہ کی رجسٹریشن اور اپڈیٹس اسکول کے اندر ہی مکمل ہو سکیں۔ 5 سے 15 سال کی عمر کے طلبہ کے لیے پہلی بار بائیو میٹرک اپڈیٹ بالکل مفت ہوگی۔ دوسری بار بائیو میٹرک اپڈیٹ کے لیے 125 روپے اور پہلے سے موجود آدھار میں دیگر تفصیلات کی تبدیلی کے لیے 75 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ اسکول میں کیمپس لگنے سے طلبہ کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا اور والدین کو بھی کام سے چھٹی نہیں لینی پڑے گی۔ حکومت ہند نے ایک نئی آدھار ایپ بھی متعارف کروائی ہے، جس کے ذریعے گھر بیٹھے کئی کام آسان ہو گئے ہیں۔ موبائل نمبر اور پتے کی تبدیلی اب ایپ کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک ہی ایپ میں خاندان کے 5 افراد تک کے پروفائل بنائے جا سکتے ہیں۔ آدھار ویریفیکیشن اور صرف ضروری معلومات شیئر کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے معروف و مقبول صحافی جناب غضنفر علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے خرابی صحت سے متاثر تھے۔ مرحوم شہر کے نامور اخبارات میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کے مضامین بھی روزنامہ سیاست میں شائع ہوتے تھے۔ جناب غضنفر علی خان مرحوم ماضی میں جوائنٹ ڈائریکٹر اے پی اردو اکیڈمی بھی رہ چکے ہیں۔ نماز جنازہ آج بروز چہارشنبہ بعد نماز شام مسجد فردوس ملے پلی میں ادا کی گئی اور تدفین عالمگیر مسجد شانتی نگر سے متصل قبرستان میں عمل میں آئی۔ مزید تفصیلات کے لیے مرحوم کے فرزند دانش سے 9948331827 نمبر پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے سرکاری اور مقامی سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی ریشنلائزیشن یعنی کہ دوبارہ منظم کرنے کے عمل کو دہرانے کا فیصلہ حتمی طور پر کر لیا ہے، جو آئندہ 2026 اور 27 تعلیمی سال سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کی منظوری وزیر اعلیٰ رحمت الدین نے برقرار رکھی ہے اور محکمہ تعلیم جلد اس پر عملی اقدامات شروع کر رہا ہے۔ ریاستی حکام نے بتایا ہے کہ ریشنلائزیشن کا بنیادی مقصد اساتذہ کی قوت کو ان کے اسکولوں میں متوازن طور پر ترتیب دینا ہے، جہاں طلبہ کی تعداد کے مطابق اساتذہ کی ضرورت موجود ہے۔ جہاں طلبہ کی تعداد کم ہے، وہاں اساتذہ کی تعداد نسبتاً زیادہ ہو گئی ہے، جس سے تدریسی وسائل کا عدم توازن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں اساتذہ کے تبادلے یاری شفٹنگ کے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اساتذہ کو وہاں مقرر کیا جا سکے جہاں طلبہ کی تعداد زیادہ ہے۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے نرساپور قصبے میں چہارشنبے کی صبح بندروں کے ایک جھنڈ نے 6 سالہ بچی پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ اپنا لنچ باکس لے کر اسکول بس میں سوار ہونے جا رہی تھی۔ متاثرہ بچے کی شناخت جوشنوی کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیسے ہی بچی بس کی طرف بڑھ رہی تھی، بندروں نے اس کا لنچ باکس چھیننے کی کوشش کی اور اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں بچی سڑک پر گر پڑی۔ اس دوران بس ڈرائیور اور بچی کے والدین نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے اسے مزید نقصان سے بچا لیا اور بندروں کو وہاں سے بھگا دیا۔ بچی کو فوری طور پر علاج کے لیے نرساپور کے علاقے اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نرساپور میں حالیہ دنوں میں بندروں کے حملوں کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم بارہا شکایتوں کے باوجود متعلقہ حکام اس مسئلے پر قابو پانے میں ناکام رہے، جس سے مقامی عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر بلدیہ میں انتخابات و انتظامات کی تیاریوں سے متعلق آج ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری IAS نے اپنے ہمراہ سب کلکٹر شاردا شکلا IAS کے ساتھ مل کر بلدیہ انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری IAS نے مقامی بلدیہ کمشنر تروپتی سے بلدیہ انتخابات اور رائے دہی کے انتظامات سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کی۔ ریرکا مرڈی منڈل پٹلم کے مسجد ٹور آٹو نگر میں 3 فروری برد منگل کی شب بعد نماز شام شب بارات مسجد کمیٹی کے صدر جناب سید یادول کی زیر نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ مولانا رقیب صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات مقدس ترین ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور تمام مخلوقات کی روزی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر کثرت سے دعا کرنے کی تلقین دی۔ آخر میں مولانا کی ہی طویل دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔
محمد عثمان سینئر جرنلسٹ جن کی اہلیہ سابق رکن بلدیہ رہی، آج اپنی اہلیہ اور حامیوں کے ساتھ سندھ عمل کے الیکشن انچارج انل جادو و رکن اسمبلی بوتھ میں ان سے ملاقات کرتے ہوئے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سینئر پارٹی لیڈر رام کشن ریڈی، محمد سلمان خان سابق معاون رکن بلدیہ اے راجندر، سابق رکن بلدیہ سابق ZPDC جیون ریڈی کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ضلع کے ABF کے 10ویں جماعت ضلع انچارج اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے جناردھن نے جائزہ لینے پر آج کاغذ نگر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ گیزٹ ہیڈ ماسٹر ضلع صدر P چندرشیکھر کے علاوہ اسٹاف کے ساتھ مل کر جناردھن کو شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ لیڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 7 میں آج کانگریس پارٹی امیدوار بھاگیوتی نے اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ ریلی کی شکل میں وارڈ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ کانگریس پارٹی کے امیدوار کو ہی ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر پرشانت گوڑ، سائلو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع منچریال کے کارپوریشن بلدیہ انتخابات میں 60 ڈویژن کے کانگریس امیدوار آفرین سلطانہ غوث الدین نے کہا بھاری اکثریت سے انہیں کامیاب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیشہ میں عوام کی خدمت کرنے میں سب سے آگے رہا ہوں اور خدمت کرتا رہوں گا۔ کانگریس حکومت سے ہی ترقی ممکن ہے اور انہوں نے ڈویژن کے تمام مسائل حل کرنے کا تیقن دیا۔ کانگریس کے حق میں ہاتھ کے نشان کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی۔ جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے موتی روڈ پارٹی آفس میں جگتیال بلدی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں پارٹی قائدینوں اور کانگریس کارکنوں کے ہمراہ میٹنگ میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا میدانی سطح پر کارکن اور قائدین کو جگتیال میونسپلٹی میں اکثریتی نشستیں جیتنے کے لیے تال میل کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کانگریس حکومت کے قیام کے بعد سے نافذ کردہ فلاحی ترقیاتی اسکیموں سے عوام کو واقف کرانے کے لیے میدانی طور پر اسکیم چلائی جائے۔ اس پروگرام میں ٹاؤن کے اہم قائدین، امیدوار اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر میونسپل وارڈ نمبر 10 میں آج مقامی BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ BJP قائدین کے ساتھ مل کر میونسپل کونسلر وارڈ نمبر 10 میں میونسپل کونسلر امیدوار اطلاع کے حق میں رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے گھر گھر جا کے انتخابی مہم چلائی۔ جگتیال MLA سنجے پر سابق وزیر T جیون ریڈی نے اندرا بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کڑے ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا ریاست میں کہیں نہیں ہوا، جگتیال میں طے بازار کو میں نے منسوخ کر دیا، ہر دن پینے کے پانی کی سربراہی میں نے کروائی۔ انہوں نے کہا جگتیال MLA کے پارٹی انحراف پر MLA نے پارٹی نہیں بدلنے کا اسپیکر نے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ MLA بھی اس پارٹی میں ہے، کون سی پارٹی میں معلوم کرنے کے لیے خوشی کی بات ہے۔ جگتیال موتی روڈ پارٹی آفس میں MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے پریس کانفرنس میں خواہشی کہ جگتیال کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا، اہم شاہراہ یاور روڈ کی توسیع کا میں پابند ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میری پارٹی جیتی ہے تو عوام کو ترقی کر کے بتاؤں گا اور خرف کو اتار دوں گا، حکومت کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ BIS پارٹی کا میں ML ہوں، ہر ماہ 5000 روپے میری تنخواہ BIS پارٹی کو ادا کرتا ہوں۔ میں نے BIS پارٹی میں موجود ہونے کا حلف نامہ داخل کیا ہوں۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کا میں چیف منسٹر یا کانگریس پارٹی کا کوئی قائد نہیں۔ ریونت ریڈی کے ساتھ جگتیال علاقے کی ترقی کے لیے ملاقات کیا، چیف منسٹر سے شال اڑایا۔ جگتیال رکن اسمبلی N سنجے کمار نے پارٹی انحراف کے مسئلے کو لے کر اسپیکر نے آج فیصلے سنانے کے بعد جگتیال موتی پارٹی آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ LID میونسپل وارڈ نمبر 6 میں آج کانگریسی امیدوار سید غفار نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام کے گھر گھر جا کر کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور میونسپل حدود میں انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر سخاوت علی، سید میر، سریواس جی اور دوسرے موجود تھے۔ LRD بلدی انتخابات میں 22 امیدواروں انتخابات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد جملہ 45 امیدوار انتخابی میدان میں بچ گئے ہیں۔ میونسپل کمشنر مہیش کمار نے مزید بتایا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے 12 امیدوار، BIS پارٹی سے 12 امیدوار، BJP سے 12 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔
BSP पार्टी से 2 उम्मीदवार आज़ाद 7 उम्मीदवार म्यूनसिपल इंतखाबात के मैदान की जीनत बने हैं। इंतखाबात को पुरअमन व शफ़ाफ बनाने के लिए सरकारी अमला मुतहरिक हो गया है। तमाम पोलिंग मराकज़ पर बुनियादी सहूलतों का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर में आज MPJ सदर फराज अहमद के ज़ेर निगरानी मुकामी बलदी इंतखाबात में बलदी कौंसलर की अवामी जिम्मेदारी और अवामी मसाइल और अवामी फलाह बहबूद के कामों को अंजाम देने से मुताल्लिक़ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मैनिफेस्ट पोस्टर्स की रज़्म इजराई अमल में लाई गई ताकि अवाम में बल्दिया कौंसलर्स की जिम्मेदारी के बारे में तफसीली जानकारी हासिल हो सके। बोधन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी और कमिश्नर बल्दिया बोधन जाधव कृष्णा ने बोधन बल्दी कौंसिल की 38 नशिस्तों के लिए 11 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुकाबला करने वाले 162 उम्मीदवारों के नामों की खत्ती फहरिस्त को जारी कर दिया है, जिसमें BIS के 24, MIM के 23, कांग्रेस के 18 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इनके अलावा आम आदमी के 2, फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और BJP ने एक मुस्लिम खातून को पार्टी टिकट देकर बोधन बल्दी इंतखाबात में उतारा है। इनके अलावा बतौर आज़ाद उम्मीदवार बाज़ मुस्लिम कायदीन भी इंतखाबात में लेकर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद शफीउद्दीन नदवी करस्पॉन्डेंट नौनिहाल हाई स्कूल कोरोटला उर्दू मीडियम मौलवी मोहम्मद वासिक के हाथों 3 फरवरी मदरसा नौनिहाल हाई स्कूल कोरोटला में तलबा में मुताले का शौक पैदा करने के मकसद से लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। इस लाइब्रेरी में अखलाकी कहानियाँ, अंबिया कराम के वाक़यात, साइंसी मालूमात, दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल तकरीबन 350 से भी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, जो तलबा की तालीमी व फ़िक्री नशोनुमा में मुआविन साबित होंगी। बोधन के करीब वाक़े निज़ाम शुगर फैक्ट्री शकरनगर के अखब में वाक़े रेलवे गेट से गुजरने वाली आवाम को पेश आने वाली दुश्वारियों का खात्मा करने मरकजी हुकूमत ने यहाँ अंडरपास रोड तामीर करने का फैसला किया और गुज़िश्ता रोज़ मंगल से बोधन बराए शकरनगर रेलवे गेट मौजू बिलाल ओटपल्ली निज़ामाबाद जाने रास्ते को 1 साल तक के लिए बंद कर देने का साउथ सेंट्रल रेलवे ने फैसला किया। महकमे रेलवे के अहदेदारों ने आवाम से ताउन की अपील की है। एलआईडी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 10 में BIS पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और कार के निशान को ही वोट देने की अपील की। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर बल्दी वार्ड नंबर 30 में BIS पार्टी कौंसलर उम्मीदवार मानिक राव के हक में BRS पार्टी साबिक सरपंच सैयद खिज़र हुसैन ने अपने हमरा BRS पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और मानिक राव के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सर से कामयाबी दिलवाने की अपील की। एलआईडी के मंडल ताड़वाई में नंदीवाड़ा में चीता गाय के बछड़े पर हमला करके हलाक करने का एक और वाकया पेश आया। कल रात राजू नामी किसान के बछड़े को चीता ने हमला करते हुए हलाक कर दिया, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमे जंगलाती अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और गम गुस्से का भी इजहार किया। फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर विनोद ने अवाम को चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी और कहा, माजी में भी जानवर हलाक हुए किसानों को हर्जाना उनके खातों में जमा करवा दिया गया है। एलआईडी साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने म्यूनसिपल के 12 वार्ड उम्मीदवारों का तारुफ करवाते हुए कहा, रुकन असम्बली म्यूनसिपल में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। BRS हुक्मरानी में किए गए कामों को ही दिखाते हुए अवाम को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, जबकि हर वार्ड में सिर्फ BRS के काम ही अवाम को नजर आते हैं। रुकन असम्बली का झूठ नहीं चलेगा। अवाम म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस को मजा चकाएंगे। इस मौके पर जालिंधर रेड्डी, नरसिमुलू, इमरान, यूनुस, सतीश और दूसरे मौजूद थे। एलआईडी म्यूनसिपल इंतखाबात का माहौल गर्मा गया है। रुकने असम्बली मदन मोहन ने आज वार्ड नंबर 11 में हंगामी दौरा करते उम्मीदवार स्वप्ना के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई, राय दहिंदों से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को ही वोट देने की अपील की।
LID में पुलिस ने म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र मुतहरिक रहते हुए आज मिनी टैंकमेंट पर सेकंड सब इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम चाई ने अपने AR खुसूसी अमले के साथ शाहराह पर गाड़ियों की तनखी अंजाम दी। नकद रकम और शराब की नाजायज मुंतकिली पर कड़ी नजर रखी हुई है। उन्होंने मजीद कहा, इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए पुलिस चौकस है। के श्री हरिराव इंचार्ज कांग्रेस पार्टी निर्मल ने आज बल्दी वार्ड नंबर 18 और 19 में कांग्रेसी उम्मीदवार सी नरेश के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। सी नरेश को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए कांग्रेस पार्टी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं रोजा रानी को भी कांग्रेस के हक में वोट देकर आए दहिंदों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बादजा मिस्टर के श्री हरिराव ने बल्दी वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस उम्मीदवार अंबाजी राठौर के हक में घर घर पहुंचकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। वाज़ेह है कि अब बल्दी इंतखाबात की रायदही को बहुत कम वक्त बच चुका है, जबकि निर्मल में कांग्रेस कायदीन अलग अलग वार्ड और बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। बल्दिया निर्मल का ओहदा खातून के लिए महफूज है और बल्दिया निर्मल में जुमला 42 वार्ड पाए जाते हैं। बांसवाड़ा के कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार कांग्रेस को छोड़कर BRS में शामिल हो गए। बांसवाड़ा म्यूनिसिपल इलेक्शन के कांग्रेस पार्टी से बी फॉर्म नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक MLA रविंदर के ग्रुप के कुछ उम्मीदवार कांग्रेस को खैराबाद कहकर BRS में शामिल हो गए। इंदिरा करण रेड्डी साबिक वजीर जंगलात आज निर्मल के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। वार्ड नंबर 10 में सुधाकर कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 में प्रमिला को कामयाब बनाने की अपील की। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस उम्मीदवार टी लता को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने राय दहिंदों से पुरजोर अपील की। उन्होंने तमाम तबकात के अवाम से अपील की कि निर्मल के तमाम वार्ड में कांग्रेसी उम्मीदवारों को ही भारी अक्सरियत से कामयाब करें। सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी सद मस्जिद दरगाह हज़रत सैयदना रोशन शहीद शमोन पेट खम्मम रोड पर आज मुनक़िदा प्रेस मीट से खिताब करते हुए सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी ने ऐलान किया कि उर्स हज़रत सैयदना रोशन शहीद बतारीख 5 फरवरी बरोज जुमेरात निहायत अक़ीदत के साथ मनाया जाएगा। जिले मंचियाल के चिनूर के साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन अर्चना राम लाल गीलदा BRS पार्टी को अलविदा कहकर रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार CM रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में चिनूर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। महेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी खंडवा डालकर इनका इस्तकबाल किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी के 6 फरवरी को दौर निजामाबाद के पेश नजर जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी और पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने निजामाबाद रूरल डॉक्टर भूपत रेड्डी, जिले कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी, मोहम्मद जावेद अकरम और दीगर कायदीन के साथ इंतजामात का जायजा लिया। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने जोर दिया कि वजीर आला के दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात, ट्रैफिक के मौसर इंतजाम और महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया जाए। वार्ड नंबर 41 में कांग्रेस उम्मीदवार फहीम खान की अहलिया मुकाबला कर रही हैं। इस वार्ड में आज यूथ लीडर ख्वाजा मंसूर अली की क़यादत में इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ख्वाजा मंसूर अली ने इस वार्ड के तमाम राय दहिंदों से अपील की कि इस वार्ड से फहीम खान की अहलिया को कामयाब बनाया जाए और वार्ड की तरक्की के लिए कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इसी तरह मोहल्ला वैएसआर कॉलोनी वार्ड नंबर 22 में साबिक हुक्म बल्दिया इमरान उल्लाह ने इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से अपील की कि वो इस वार्ड से कामयाब करे। इस वार्ड की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा। वाज़ेह है कि हर सियासी जमात निर्मल के तमाम 42 वार्ड में मुतहरिक हो चुकी है। निर्मल में बल्दी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर जा रही है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज भी आए कायदीन भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए घर घर पहुंचे। राय दहिंदों से BIS उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपील की। इस मौके पर साबिक मावी रुकन बल्दिया मोहम्मद सलमान खान ने तमाम तबकात के राय दहिंदों से अपील की कि वो चंद्रशेखर और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के दौर को याद करे, अपने वोट का इस्तेमाल करे। आज वार्ड नंबर 14 में मियां अजहरुद्दीन एडवोकेट की अहलिया अफशा जबीर मुकाबला कर रही हैं।
वार्ड नंबर 8 में शेख सलमान मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं श्रीकांत यादव वार्ड नंबर 9 से इंतखाब लड़ रहे हैं और अपने अपने वार्ड के राय दहिंदों से BIS को वोट देते हुए कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। LID के वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत ने वार्ड की आवाम से कांग्रेस हुकूमत के तरक्याती काम देखते वोट देने की अपील की और वार्ड में मजीद बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 10 में आज मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीशौर ने अपने हमरा बीजेपी कायदीन के साथ मिलकर म्यूनिसिपल काउंसिलर वार्ड नंबर 10 में म्यूनिसिपल काउंसिलर उम्मीदवार इस्लाह के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। बांसवाड़ा में 11 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात को पूरा शफाफ के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के पेश नजर कामारेड्डी जिले SP राजेश चंद्रा ने बांसवाड़ा पहुंचकर मुकामी पुलिस अहदेदारों से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के ताल्लुकात से मालूमात हासिल की और बाद चंद हसास पोलिंग मराकज़ का भी मुआयना किया। रंगारेड्डी जिले में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। खातून वकील 34 साला स्वप्ना को उनके अपने भाई ने कत्ल कर दिया। ये वाक़या मोइनाबाद मंडल के केतिरेड्डी पल्ली गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक स्वप्ना चेवेला कोर्ट में वकालत करती थी। उनके खानदान में जायदाद के हवाले से तनाज़ा चल रहा था। इसी पस मंज़र में चारशंबे की सुबह एक फार्म हाउस में पंचायत हो रही थी, जिस दौरान उनके भाई ने स्वप्ना को मुहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की इत्तला मिलते ही मोइनाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वारदात का मुआयना किया। लाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेवेला कोर्ट के वकला ने स्वप्ना के कत्ल पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने काम का बाइकआउट किया और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर चारशंबे की रोज उस वक्त हलचल मच गई जब रायपुर जाने वाली एक फ्लाइट में उड़ान भरने से कुछ ही देर कबल तकनीकी खराबी का इंकशाफ हुआ। इत्तलात के मुताबिक मुसाफिर तैयारे में सवार हो चुके थे और तैयारा रनवे की तरफ जाने के लिए तैयार था कि पायलट ने मामूल की जांच के दौरान एक तकनीकी खराबी महसूस की। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर तैयारे से बहिफाजत उतार लिया गया और तकनीकी माहिरीन की टीम को मुआयने के लिए तलब कर लिया गया। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि माहिरीन खराबी की शनाख्त और उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अदाकार व आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला व जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण आइंदा तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के हक में 7 और 8 फरवरी को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये पेशरफ्त मंगल 3 फरवरी को हैदराबाद में पवन कल्याण की रिहाइशगाह पर होने वाले एक अहम मुलाकात के बाद सामने आई, जिसमें मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव शरीक थे। रामचंद्र राव के मुताबिक इस मुलाकात में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात समेत कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण ने बीजेपी के लिए मुहिम चलाने की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रामचंद्र राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पवन कल्याण और जी किशन रेड्डी से मुलाकात उनके लिए एजाज की बात है और ये गुफ्तगू वसी और बामाना रही। उन्होंने मजीद कहा कि पवन कल्याण ने बीजेपी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी के हक में मुहिम चलाने पर आमादगी जाहिर की। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग 11 फरवरी को 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 116 म्यूनिसिपलिटियों में होगी, जबकि नताइज का ऐलान 13 फरवरी को किया जाएगा। हैदराबाद के चिल्लापल्ली स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 2:58 पर जब ये ट्रेन श्रीपोटी श्रीरामुलु नेल्लूर जिले के बटरा गुंटा स्टेशन से गुजर रही थी तो वहां सिग्नल डेंजर यानी खतरे का निशान दे रहा था, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय उसे उबूर कर गई। ट्रेन सिग्नल तोड़ने के बाद तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाकर रुकी। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन उसी तेज रफ्तारी से जाती रहती तो कोई खतरनाक हादसा पेश आ सकता था। इस संगीन लापरवाही के बाद रेलवे हुकाम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ट्रेन को वहीं रोक दिया और लोको पायलट्स वो ट्रेन मैनेजर को फौरी तौर पर ड्यूटी से हटाकर नीचे उतार लिया। मुसाफिरों की रवानगी के लिए मुतबादिल अमले का इंतजाम करके ट्रेन को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। फिलहाल डिवीजनल सतह के आला हुकाम और तिब्बी माहिरीन की टीमें इस वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुताल्लिक़ा अमले से पूछताछ कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि सिग्नल नजरअंदाज होने की असल वजह क्या थी।
सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमत उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व साबिक रुकन असम्बली का मंगल 3 फरवरी को बाद नमाज मगरिब बउम्र 72 बरस इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा चारशंबा 4 फरवरी को बाद नमाज दोहर जामा मस्जिद हकीम मीर वजीर अली फतेह दरवाजे में अदा की गई और तदफीन अहाते मस्जिद हजरत सैयद मोहिउद्दीन पाशा ज़ेरीन कला रहमतुल्लाह अलैह नूरखां बाजार में अमल में आई। पसमंदगान में एक साहिबजादे मौलाना सैयद कादिर मोहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ज़ेरीन कला और 2 साहिबजादियाँ शामिल हैं। फातिहा सियम जुमेरात को बाद नमाज असर मस्जिद हजरत सैयद मोहिउद्दीन पाशा ज़ेरीन कला रहमतुल्लाह अलैह नूरखां बाजार में मुकर्रर है। उनके इंतकाल पर बैरसर ओवैसी, पार्टी कायदीन, कारकुनान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल न सिर्फ मजलिस पार्टी बल्कि रियासती सियासत के लिए भी एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और चारमीनार हल्के के साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। वज़ीर आला ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सैयद अहमद पाशा कादरी ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर और 4 मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और अक़लियती तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मरहूम की पसमंदगा से दिली ताज़ियत व हमदर्दी का इजहार किया। मदरसे के एक मदरस की जानिब से कमसिन बच्ची के साथ जिनसी हरासानी का वाक़या गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर साइदुल्लू की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों को अरबी पढ़ाने के लिए बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाले 19 साला रज़्ज़ाक की 4 माह कबल खिदमत हासिल की थी। मज़कूरा टीचर टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में वाक़े एक मदरसे में उस्ताद के तौर पर मुकर्रर थे। इसी दौरान पीर की रात तकरीबन 9:30 बजे मकान मालिक अपनी अहलिया के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे। उस वक्त उस्ताद रज़्ज़ाक घर में तीनों लड़कियों को तालीम दे रहे थे। घर में कोई मौजूद ना होने का फायदा उठाते हुए उसने एक बच्ची को दूसरे कमरे में भेज दिया और दूसरी लड़की जो 7 साल की बताई गई है उसके साथ जिनसी हरासानी की। वालिदैन के घर वापस आने के बाद मुतासिरा बच्ची ने पेश आए वाक़े के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने मुकामी गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुतासिरा खानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के चकतिया जिले में मंगल की रात एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में 4 ज़राई मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़राई मजदूर हल्दी की कटाई के बाद वापस लौट रहे थे कि मलापुर मंडल के मोगली पेट के करीब पहुंचते ही ट्रैक्टर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुतादिद दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जकियाल अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।